चलिए, स्वागत है आप सभी का। एडिशनल सेट डिस्कस कर रहे थे अपन लोग, ठीक है। केस स्टडी 1 हो गई, अपन केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इजी केस स्टडी है, फटाफट हो जाएंगी। रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। एमसीक्यूज। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट इफेक्टिव डेट फॉर अमालगमेशन। लॉ का क्वेश्चन। अंडर मैकेंजी 7S framework, DPL's acquisition of BDM Limited and subsequent efforts to strengthen the internal controls would most likely be classified under मैकेंजी 7S SCMP में पढ़ते हो आप लोग। At what cost intangible asset, that is the finance software, will be recognized by DPL? FR का क्वेश्चन। Considering the disclosure of additional information in the consolidated financial statements, which of the following statement is correct? FR का क्वेश्चन है। Which of the following statement best reflects the proper treatment of goodwill and other consolidation adjustments within the context of these financial statements? FR. How should DPL apply the relevant Ind AS to account for the acquisition of design A and design B, and at what amount? FR का क्वेश्चन है वापस से। Determine the accurate valuation of BDM Limited as calculated by the registered valuer of DPL and provide an analysis based on the revised valuation. AFM का क्वेश्चन है। Can Mr. Ashok be absolved of the responsibility of actions taken prior to the acquisition solely because the company has undergone a change in ownership or structure? Comment. लॉ का क्वेश्चन है। बहुत इजी केस स्टडी है, छोटी सी है, हलुआ केस स्टडी है, हलुआ, ठीक है। तो इसको हलवे की तरह खत्म कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। देव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फाउंडेड इन द हार्ट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल हब लखनऊ in the early 1980s, DPL began its journey as a modest manufacturing unit specializing in agricultural implements. The company's entrepreneurial spirit and a keen understanding of rural India's needs propelled its initial growth. Recognizing the construction sector, ये कौन सा वर्ड है मुझे नहीं पता। DPL expanded its product line in late 1990s to include basic building materials. This strategic move proved to be a cornerstone of solidifying the company's position in the market. एक सेकंड। Over the decades, DPL consistently reinvested its profits into R&D, enabling it to diversify its product portfolio. In early 2000s, DPL witnessed DPL's foray into consumer durables market. पहले मैंने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से स्टार्ट किया था, फिर मैं कंस्ट्रक्शन में घुसा, अब मैं किस में घुसा हूँ? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में, with the introduction of essential home appliances. This expansion was driven by the growing middle class and the increasing demand for modern conveniences. The company's commitment to quality and affordability quickly garnered a loyal customer base. By mid-2010s, DPL had established itself as a formidable force in the Indian manufacturing industry. The company's ability to adapt to evolving market trends and consumer preferences allowed it to navigate economic challenges and emerge stronger. मतलब एजाइल कंपनी है मेरी, ठीक है। एजाइल मतलब चेंजेस से क्विकली अडेप्ट कर लेती है। A strategic focus on building a robust distribution network and prioritizing customer satisfaction further cemented DPL's position as a trusted brand. ठीक है, अभी तक कहानी चल रही है। The company's product portfolio is strategically categorized to cater the different market segments, offering a comprehensive range of building materials essential for various construction projects, including pipes, wires, electrical fittings, and prefabricated building components. मतलब जो construction sector है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, उसमें मैं ये सब चीज़ें सप्लाई करता हूँ। इन द होम अप्लायंसेस सेक्टर, दूसरा सेक्टर, DPL meets the need of modern households with a selection of essential appliances like refrigerators, washing machines, and water purifiers, potentially expanding to include smaller appliances like kettles or toasters. Recognizing the importance of long-lasting customer durables, DPL's offering in this category include products like bicycles, furniture, and even electronics like television. सब बनाता है, अंबानी है ये। Beyond product diversification, DPL prioritizes exceptional customer service and has established a robust distribution network across North India, ensuring easy product availability for retailers and consumers. Additionally, DPL emphasizes responsive after-sales support through a network of service centers, fostering customer satisfaction and brand loyalty.
अभी तक जो था वो मेरे हिसाब से टाइम पास ही था, अपन रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ा, उसमें एफ आर उसमें कुछ आया नहीं है ज्ञान अभी तक। अब काम की बात है, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन ऑफ BDM लिमिटेड। In a strategic move to enhance synergy and expand its market presence, DPL acquired BDM Limited. BDM Limited is projected to generate an expected free cash flow of 2 crore in the upcoming year with a forecasted growth rate of 5%. The company's cost of equity is 12%. After tax cost of debt is 6%. थोड़ी थोड़ी SFM की हिंट मिलेगी आपको। Notably, the market value of BDM is estimated to be 3 times of its book value. जो market value है is equal to 3x of book value. 3x of what? Book value. And market value of debt is equivalent. Similarly, मतलब ऐसा ही होता है, SFM में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को आपको एज अ परसेंटेज या एज अ टाइम्स बता देते हैं, और डेट का वैल्यू वो बोलते हैं सेम है। The acquisition process saw significant milestones, beginning with the receipt of certified copy of order of amalgamation from NCLT on 26 April 23. Dates पे ध्यान देना। This document, dated 25th April 23, was subsequently filed with ROC on 2nd May 23. Within the stipulated timeline, the amalgamation was officially registered with ROC on 10th May 23, with the scheme of amalgamation indicating an appointed date of 5th May 23. मतलब ये जो ऑर्डर आया 26 अप्रैल को, अपॉइंटेड डेट थी 5th में। ये सब डेट्स तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट की थी। 26 को जो ऑर्डर आया उसकी अपॉइंटेड डेट थी 5th में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Initially, BDM Limited was valued at 50 crores by an analyst for the purpose of amalgamation. However, the registered value of DPL later discovered that the analyst had utilized the book values of debt and equity in his calculation, which necessitated a revision in BDM Limited's valuation in the amalgamation scheme. As a part of acquisition, DPL also gained two valuable trade secrets of BDM Limited. A patented interlocking bricks design, and design B, which pertains to internal component डिज़ाइन ऑफ ब्रिक्स बट लैक्स लीगल प्रोटेक्शन। मतलब डिज़ाइन ए है वो पेटेंटेड है, और बी है वो इंटरनली जनरेटेड है, पेटेंटेड या लीगल प्रोटेक्शन उस पर नहीं है। ये बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन आ गया कि एनालिस्ट ने बुक वैल्यू यूज़ की थी, लेकिन अपन को मार्केट वैल्यू यूज़ करके कंपनी का वैल्यूएशन रिवाइज करना। बहुत फालतू AFM का क्वेश्चन है ये, हर बार आता है। लीगल चैलेंजेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। टू कमेमोरेट two significant milestones, the successful acquisition of BDM and 25th anniversary of founding DPL। मतलब BDM का acquisition और इसकी 25 साल की सालगिरह, hosted a grand celebration for major shareholders of both companies। ठीक है। However, the festive atmosphere was soon overshadowed by a controversy that emerged in the media, shedding light on legal issues involving former director of BDM Limited. This unexpected revelation posed a significant legal challenge for DPL, as the company had to address the complexities surrounding the personal liability of directors for actions taken before acquisition। हम यहाँ पे पार्टी कर रहे थे और पार्टी के बीच में खबर आई कि जो भाई इसका जो डायरेक्टर था BDM लिमिटेड का, वो कुछ गड़बड़ करके गया है BDM लिमिटेड में। ठीक है। Following the discussion, DPL's management prioritized strengthening the internal controls to ensure smooth integration of the merged entities and to mitigate the potential risk. As part of this initiative, DPL's management met with the statutory auditors LR and Company to discuss implementing a risk-based audit approach. To further bolster its internal controls, particularly in the accounts and finance, DPL purchased standardized finance software at a list price of 15 lakh, paying 0.25 lakhs towards non-refundable tax. The company also granted trade discount of 5% on the initial list price and incurred a cost of 3.5 lakhs for customizing the software for the intended use. Additionally, DPL secured a 5-year maintenance contract for 1 lakh. ठीक है, इसका क्वेश्चन है किस वैल्यू पे होना चाहिए। Audit and financial reporting. During the audit of DPL's consolidated financial statements for the year ended 2023-24, 31st March 24, which are required to be prepared in accordance with Division 2, Schedule 3 of the Companies Act 13, CA Lokesh, the engagement partner of LR and Company, noticed important details. The notes to accounts in respect of
Consolidated financial statements disclose additional information pertaining to the holding company and its subsidiaries. This included percentages of consolidated net assets, consolidated P&L, total comprehensive income, along with the respective amounts. Additionally, during 23-24, goodwill of 10 crores arose from the acquisition of subsidiary, with no impairment loss as on the balance sheet date. Adjustments were made in the consolidated financial statements concerning intra-group indebtedness and harmonizing different accounting policies adopted by the parent and subsidiaries. DPL's journey from small manufacturing unit to leading player in multiple sectors showcases its strategic foresight and adaptability. The recent acquisition of BDM Limited and the company's ongoing efforts to strengthen the internal control reflect DPL's commitment to sustainable growth and governance. ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है. हो गया. अभी फटाफट से इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. चलो MCQ. From the following options, you are required to choose the correct effective date of amalgamation. ध्यान दो, आ जाओ. आंसर्स. आपको एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 232 का सबसेक्शन 6. सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? इफेक्टिव डेट ऑफ व्हाट? अमालगमेशन. वो क्या होगी? अपॉइंटेड डेट एज पर द स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन. देखो सिंपल, सेक्शन 232 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर विल बी द डेट मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ द स्कीम ऑफ अमालगमेशन. मतलब क्या? स्कीम ऑफ अमालगमेशन इंडिकेटिंग एन अपॉइंटेड डेट ऑफ 5th में. मतलब जो स्कीम ने बोला अपॉइंटेड डे, वही आपका इफेक्टिव डेट है. स्कीम ने अपॉइंटेड डे बोला, वही आपका इफेक्टिव डेट है. तो 5th में इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, आ जाओ सेकेंड MCQ. Under McKinsey 7S, DPL's acquisition of BDM Limited and subsequent efforts to strengthen the internal controls would most likely be classified under. आ जाओ, मैंने McKinsey 7S आपको दिया हुआ है, वो जो SCMP का जो बड़ा वीडियो डाला है मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके, उसमें कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, देख लेना. McKinsey 7S के इतने एलिमेंट्स होते हैं. कितने? इतने एलिमेंट्स. अपन ने क्या किया है? इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन किया है. तो अपन ने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया है, सिस्टम्स को. और दूसरा क्या किया है? इधर देखो, स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल्स वुड बी क्लासिफाइड अंडर. देखो सिस्टम्स वर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में. शेयर्ड वैल्यू में आ रहा है? नहीं. स्ट्रक्चर में आ रहा है? नहीं. स्टाइल में आ रहा है? नहीं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सिंपल. अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया है. सिस्टम्स वाला एक ही ऑप्शन है, स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम. तो ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, ये हार्ड टेस्ट, सॉफ्ट टेस्ट, ये सब उस वीडियो में देख लेना. 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन है आपके लिए. ठीक है, आ जाओ. सर आप उड़ा रहे हो केस स्टडी. अरे कुछ है ही नहीं इस केस स्टडी में, प्लीज़ अंडरस्टैंड. और आपके पास टाइम भी नहीं है कि ऐसी फालतू केस स्टडीज़ में आप ज़्यादा टाइम दो, इसलिए मैं भी क्विकली देख रहा हूँ. तो सर करवा क्यों रहे हो? अरे इंस्टीट्यूट ने दी है एडिशनल, तो करवानी तो पड़ेगी. At what cost the intangible asset, that is the finance software, will be recognized by DPL? आ जाओ. लिस्ट प्राइस ले लेंगे, ठीक है. नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो ऐड हो जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस हो जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे मिला है तो 15 का 5%, और कस्टमाइजेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा 18 लाख रुपीस. ठीक है, वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. किसमें? कैपिटलाइजेशन अमाउंट में. तो 18 लाख इज द करेक्ट आंसर. क्या यार, कैसी केस स्टडीज करवा रहे हो? रुको एक सेकंड ना, मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ. भी मैं एक अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं स्क्रीन कर देता हूँ. ठीक है, तो आई गेस दिस विल बी बेटर. ठीक है, तो इसमें 18 लाख इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. आई होप दिख रहा है.
दिख रहा है, ठीक है। कंसिडरिंग द डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सबसे पहला, the said disclosure is not proper as percentage of consolidated revenue from operations along with respective amount pertaining to holding company and subsidiary company is also required. Said disclosure is not proper as percentage of other comprehensive income along with respective amounts is required. Not proper as percentages of consolidated revenue from operations as well as other comprehensive income along with the respective amounts pertaining to holding and subsidiary is also required. ठीक है, आ जाओ फटाफट से बता देता हूँ। थोड़ा है ना, इसको मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ, रुको एक सेकेंड ना। आ जाओ। शेड्यूल थ्री आपका, उसका डिवीजन 2 बोलता क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स के टाइम पे शेड्यूल 3 बोलता क्या है? आपको क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप देते हो, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी देते हो, ग्रुप स्ट्रक्चर देते हो, एडिशनली क्या देना है? अमाउंट ऑफ नेट असेट्स एंड परसेंटेज ऑफ नेट असेट्स एज अ परसेंटेज टू कंसोलिडेटेड नेट असेट्स हर एक सब्सिडरी के लिए। कौन सा? अमाउंट ऑफ नेट असेट्स प्लस परसेंटेज टू कंसोलिडेटेड नेट असेट्स। दूसरा, अमाउंट ऑफ पीएनएल शेयर एंड परसेंटेज ऑफ पीएनएल एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोल पीएनएल, सॉरी, अमाउंट ऑफ पीएनएल शेयर, पीएनएल रिस्पेक्टिव एंटिटीज का पीएनएल देना है और कंसोल पीएनएल के परसेंटेज में शेयर कितना है वो देना है, और ओसीआई देना है और कंसोल ओसीआई का कितना परसेंटेज शेयर बनता है वो देना है। क्या क्या चीज़ें देनी है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के आप डिस्क्लोजर्स देते हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के आप डिस्क्लोजर देते हो, उसके साथ साथ आपको क्या देना है? नेट असेट्स देनी है रिस्पेक्टिव एंटिटीज की और परसेंटेज टू कंसोल नेट असेट्स देना है, पीएनएल देना है रिस्पेक्टिव एंटिटीज का एंड परसेंटेज टू कंसोल पीएनएल देना है एंड ओसीआई देना है प्लस परसेंटेज टू कंसोल ओसीआई देना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? The said disclosure is not proper as percentage of OCI along with respective amount pertaining to holding and subsidiaries is also required। मतलब सिंपल बात है, आपको क्या क्या नहीं देना है? रेवेन्यू एज अ परसेंटेज नहीं देना है, आपको रेवेन्यू यहाँ पे भी नहीं देना है, प्रॉपर तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन बी राइट है। अब पूरा पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड परस्यूएंट टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली फॉर अ पेरेंट एंड ईच ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। सबसे पहले नेट असेट्स एंड नेट असेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोल नेट असेट्स, पीएनएल एंड परसेंटेज ऑफ पीएनएल एज ऑफ कंसोल नेट असेट्स, ओसीआई एंड परसेंटेज ऑफ ओसीआई, परसेंटेज टू कंसोल ओसीआई, ठीक है। तो सिंपल ये डिस्क्लोजर बेस का आपका क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शंस कैसे आपने उड़ाए? रेवेन्यू नहीं है तो ये दो रेवेन्यू वाले ऑप्शन कट गए, डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, तो ये ऑप्शन आपका सही है, सिंपल। Which of the following statement best reflects the proper treatment of goodwill and other consolidation adjustments within the context of these financial statements? अच्छा इधर आओ। गुडविल जो है, गुडविल ये एक परमानेंट एडजस्टमेंट है। क्यों? गुडविल हर साल चेंज नहीं होती अनलेस देयर इज एन इम्पेयरमेंट। और इंट्रा ग्रुप जो भी ट्रांजैक्शंस आप एलिमिनेट करते हो ये एवरी ईयर करते हो, एवरी ईयर करते हो आप ये, तो ये वो बोलता है कि एवरी ईयर नहीं, ये साइक्लिकल एडजस्टमेंट्स है, या कौन से एडजस्टमेंट्स बोलते हैं? करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स बोलते हैं ये लोग। तो अब हमें उसके हिसाब से ऑप्शन टिक करना है। गुडविल रिप्रेजेंट्स करंट पीरियड कंसोलिडेशन, गलत। Adjustments relating to goodwill, intra-group indebtedness and those relating to harmonize different accounting policies represent current period। नहीं, goodwill is permanent, तो ये ऑप्शन भी गलत है। Goodwill represents permanent console adjustment, सही है। Adjustments relating to intra-group indebtedness and those relating to harmonizing the different accounting policies being adopted by the parent are current period, तो ये ऑप्शन अभी सही लग रहा है। चौथा पढ़ लेते हैं। Goodwill and adjustments relating to are permanent, गलत, तो ऑप्शन आपका सी सही है। आपको बस इतना समझना है कि गुडविल को परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बोलते हैं और बाकी को करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, या कहीं कहीं साइक्लिकल, मतलब हर साइकिल एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको वो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, सिंपल। इसमें कुछ समझना नहीं था, ठीक है, आ जाओ।
How should DPL apply the relevant Ind AS to account for design A and design B and at what amount? यहाँ पे आ जाओ. Ind AS 38 जो है, Ind AS 38 वो क्या बोलता है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन उसकी दो कंडीशन है. सबसे पहला, और ये हम बात कर रहे हैं गुडविल के टाइम, सॉरी कंसोलिडेशन के टाइम पे, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल इंटेंजिबल एसेट एक्विजिशन. ये मैं बात कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसोलिडेशन. सबसे पहला आपको ये चेक करना है कि क्या वो इंटेंजिबल एसेट आपके नॉर्मल बिजनेस से सेपरेबल है. थोड़ा आगे का डिस्कशन कर लेता हूँ. चलो, गुडविल कैसे आती है? पीसी जो अपन ने पे किया, एनसीआई जो पे अपन ने नहीं किया, और नेट असेट्स जो अपन ने एक्वायर की. ये दो इसके सामने अपन ने पे किया, तो जो बचा कुछ आया बैलेंसिंग फिगर वो आया गुडविल. ठीक है. Ind AS 103 बोलता है इन लाइन विथ कंबाइंड रीडिंग ऑफ Ind AS 38 कि कोई भी इंटेंजिबल असेट अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती है तो वो गुडविल में नहीं जाएगी. कोई भी इंटेंजिबल असेट अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होती तो ही तो वो गुडविल में जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कंपनी एक्वायर की है, उसके एक्सपीरियंस्ड मैन पावर का मैंने पैसा दिया है, लेकिन वो अपने गुलाम तो नहीं है, वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, तो वो सेपरेबल नहीं है, तो यहाँ पे कैप्चर नहीं होंगे, तो गुडविल में जाके बैठ जाएंगे कि भाई ये सारी ऐसी एसेट्स जिसका मैंने पैसा दिया है, जिसका मैंने कंसोलिडेशन के टाइम पे, बिजनेस खरीदने के टाइम पे पैसा दिया है, लेकिन वो आइडेंटिफाइबल नहीं थी, तो वो गुडविल में जाके बैठ गई बैलेंसिंग फिगर. लेकिन जो असेट्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, वो मैं यहीं से लेस करूंगा, वो गुडविल में नहीं जाएगी. इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए Ind AS ने दो चीजें बोली. अगर वो असेट आपके बिजनेस से सेपरेबल है तो उसको यहाँ पे नेट असेट्स आइडेंटिफाइड में लिया जाएगा, गुडविल में आप नहीं डालोगे, मतलब उसको मर्ज करके गुडविल के चंक में नहीं डालोगे. सेपरेट मतलब कैन बी सोल्ड सेपरेटली. मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैं बाहर बेच सकता हूँ, तो इट इज सेपरेबल है. अच्छा, वो सॉफ्टवेयर मैं ऐसे ही नहीं बेच सकता, उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी बेचना पड़ेगा, स्टिल इट्स सेपरेबल. क्यों? बिजनेस में से निकाल के मैं बेच सकता हूँ. अच्छा, सिर्फ बेच सकता हूँ आता है नहीं, मैं लाइसेंस दे सकता हूँ, मैं लीज पे दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. मैं अगर उसको बिजनेस में से बाहर निकाल सकता हूँ तो उसको सेपरेबल माना जाएगा, और उसको सेपरेटली अपन अकाउंट फॉर करेंगे, गुडविल में ऐड नहीं करेंगे. अच्छा, वो सेपरेबल नहीं है, लेकिन क्या वो असेट कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट है, वो मैं बेचना चाहता नहीं, आई एम नॉट विलिंग टू सेल, और उसके बिना मेरा काम भी नहीं चलेगा, मेरे बिजनेस से सेपरेबल भी नहीं है, लेकिन क्या वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से आती है? यस. तो उसको भी मैं अलग से अकाउंट फॉर करूंगा यहाँ पे. आई विल नॉट क्लब हियर. मैं यहाँ पे उसको अकाउंट फॉर करूंगा, मैं यहाँ पे उसको क्लब नहीं करूंगा. आ जाओ. डिजाइन ए है, वो पेटेंटेड है. सिंपल, दिमाग बंद कर दो. पेटेंटेड है, लीगल राइट से आती है, तो बेसिकली उसको कहाँ से अपन उसको गुडविल में ऐड नहीं करेंगे, उसको सेपरेबली शो करेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं. डिजाइन ए पेटेंटेड है तो गुडविल में नहीं जाएगी, उसको अलग से शो करेंगे. डिजाइन बी जो है, ये एक इंटरनल कंपोनेंट डिजाइन है. मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये फोन बनाता हूँ मैं, तो मैंने इसका मोल्ड बना के रखा है. ठीक है, मोल्ड आप समझते हो, वो मोल्ड बना के रखा है. ठीक है, और ये मोल्ड सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, कोई और नहीं बना सकता. तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि इस पे मेरा एक्सेस राइट है, मेरा प्रिविलेज है कि मैं ही बना सकता हूँ. मैंने इसको पेटेंट नहीं करवाया, अभी तक नहीं करवाया है, लेकिन पेटेंट प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन सेपरेबिलिटी है इसमें. मतलब मैं इसको आउटराइट बेच सकता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ या नहीं, नॉट कंसर्न, मैं बेच सकता हूँ. यस. और इसके मेरा जो अक्वायरर है, क्या ये इसके एडिशनल पैसे दे रहा है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसके डेवलपमेंट में मुझे 100 का खर्चा हुआ था, वो 200 में एक्वायर कर रहा है. ठीक है, 200 में एक्वायर कर रहा है, तो 200 रुपये यहाँ बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे.
वो यहाँ पे बैठेंगे नेट एसेट्स में, यहाँ पे नहीं बैठेंगे। वापस से डिजाइन ए पेटेंटेड है, इसको लीगल राइट मान लो। डिजाइन बी जो है, डिजाइन बी जो है वो सेपरेबल है, सेपरेबल है, तो उसको इस क्राइटेरिया के हिसाब से अपन नेट एसेट्स में डालेंगे, गुडविल में नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अज्यूम किया है बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ना ऐसा बोल दिया है कि ये एसेट सेपरेबल है, और क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि ये एसेट सेपरेबल है, इंस्टीट्यूट ने इसको सेपरेबल अज्यूम किया तो अपन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये पता चल गया कि डिजाइन ए एंड डिजाइन बी को गुडविल में ऐड नहीं करेंगे, उसको अलग से नेट एसेट्स में रखेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू पे? फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट। मतलब ये जो दो असेट्स है डिजाइन ए एंड डिजाइन बी, इसकी फेयर वैल्यूएशन की जाएगी। इसकी क्या की जाएगी? फेयर वैल्यूएशन। और फेयर वैल्यूएशन होगी क्या? फेयर वैल्यू क्या होगी? प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द असेट और ट्रांसफर अ लायबिलिटी एट एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज। ये फेयर वैल्यूएशन का कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ए एंड बी को गुडविल से सेपरेट शो किया जाएगा और फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। खत्म। बात समझ में आई? ठीक है। Determine the accurate valuation of BDM Limited as calculated by the registered valuer and provide analysis based on the revised calculation. इधर आ जाओ। ये सिंपल सा कोई कैलकुलेशन है, देखो फटाफट से। बुक वैल्यू ऑफ डेट है इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, मैंने x बोल दिया। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, उसको 3x बोल दिया। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का रेशियो क्या आया? 3:1। मतलब उसके वेट्स क्या है? 0.75 और 0.25। मार्केट वैल्यू के जो वेट है वो 0.75 आया, और बुक मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है उसका वेट आया 0.25। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? WE इंटू KE प्लस WD इंटू KD। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, रिवाइज वैल्यू कैसे आई? यहाँ पे ध्यान दो। एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो, मतलब ये C1 है। एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो है 2 करोड़, ग्रोथ रेट है 5%, तो वही गॉर्डन्स मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, आप जो बोल रहे हो वो। कैश फ्लो ले लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये रहा, ग्रोथ परसेंटेज माइनस कर दिया, तो 36.36 करोड़ आपका रिवाइज वैल्यूएशन आया। और उसने वैल्यूएशन किया कितने का था? 50 करोड़ का, और रिवाइज वैल्यूएशन कितना आया? 36.36। ये पढ़ लेना। ठीक है, कोई फालतू सा एनालिसिस दिया है। और लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत लॉजिकल सा है लास्ट क्वेश्चन, आप ऐसे ही बोल दो कि कैन मिस्टर अशोक बी एब्सॉल्व्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस टेकन प्रायर टू द एक्विजिशन सोली बिकॉज द कंपनी हैज अंडरगोन अ चेंज ऑफ ओनरशिप और स्ट्रक्चर? कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कंपनी चलाता हूँ, ठीक है, मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, उस कंपनी में मैंने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और अभी कंपनीज एक्ट की लायबिलिटी से बचने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक दूसरी कंपनी सेटअप की। ठीक है, और मैंने जिस कंपनी में गफला किया था, इस कंपनी को बोला तू इस कंपनी को खरीद ले, ताकि क्या हो जाएगा? ये कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो गया, क्यों? मर्ज हो गई, मर्ज हो गई। और मैंने क्या सोचा कि अगर कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसमें किए हुए फ्रॉड्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? मैं नई कंपनी खोली, इसमें इसको बिकवा दिया, बोला अब तो ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसमें जो चल रहे हैं फ्रॉड्स, या इसमें जो फ्रॉड्स हुए, या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस फ्रॉड के लिए, वो सारे फ्रॉड्स या वो पर्सन भी अब क्या बोलते हैं, गिल्टी नहीं रहे। कंपनीज एक्ट बोला ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आपने अगर कंपनी में गड़बड़ की है, फिर आप बोलते हो कि इसको दूसरी कंपनी खरीद ले ताकि इसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाए, और इसमें किए हुए सारे फ्रॉड्स है या क्राइम है या ऑफेंसेस है उसका भी कोई वैल्यू ना रहे, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कंपनी मर्ज हो जाने के बाद भी, कंपनी मर्ज हो जाने के बाद भी, ध्यान से सुनना, कंपनी मर्ज हो जाने के बाद भी जिन लोगों ने उस कंपनी में ऑफेंसेस किए थे उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। जिन लोगों ने उस कंपनी में ऑफेंसेस किए थे, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती अभी भी, लेकिन वो ऑफेंसेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ, नॉटविथस्टैंडिंग आपको पता है इट्स एन ओवरराइडिंग वर्ड,
ये नॉट विथ स्टैंडिंग लिख दिया मतलब वो सारे अदर सेक्शंस को ओवरराइड करेगा. इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट बाय द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट इन द ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी की अभी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रायर टू इट्स मर्जर अमालगमेशन और एक्सिक्यूशन शैल कंटिन्यू आफ्टर सच अमालगमेशन मर्जर और एक्विजिशन. खत्म हो गया. मतलब कंक्लूजन पढ़ लो. विद रेफरेंस टू अबव कोटेड सेक्शन एंड गिवन केस, द कंटेंशन ऑफ मिस्टर अशोक इज नॉट करेक्ट सिंस द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस कमिटेड under Companies Act 13 by the officers in default of the transfer company prior to merger shall continue. बहुत लॉजिकल था. ठीक है, कुछ था नहीं यार इस केस स्टडी में. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत उड़ाया है तो यार नसीब मेरे और आपके दोनों. ठीक है ना. चलो केस स्टडी 3 में मिलते हैं. बाय बाय.